So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, in text number 6 and 7. And the description of the story, what happened. And in the last verse, Parikshit Maharaj is asking a question to Sukadeva Goswami. This was a matter of marriage between a Brahman and Kshatriya, and it is said to be pratilom marriage. So let's try to understand what is that. Maharaj Parikshit said Sukracharya was very powerful Brahman and Maharaj Yayati was a Kshatriya. Therefore, I am curious to know how there occurred this pratilom marriage between a Kshatriya and Brahman. How come this happened? So according to the Vedic system, marriages between Kshatriya and Kshatriya or between Brahman and Brahman are general custom. If marriage sometimes takes place between different classes, these marriages are of two types, namely Anuloma and Pratiloma. Anuloma and Pratiloma. There are two types of intercaste marriage. Anuloma marriage between a Brahman and a daughter of Kshatriya is permissible. A Brahman can marry a Kshatriya daughter, but a Brahman's daughter cannot marry. So that is a Pratilom marriage. Anulom means a Brahman can marry a Kshatriya daughter. Alright? So, that is permissible. Anulom is permissible. But Pratilom, marriage between Kshatriya and daughter of a Brahman, is not generally allowed. Therefore, Maharaj Parikshit was curious about how Shukracharya, a powerful Brahman, could accept the principle of Pratilom. Maharaj Parikshit was eager to know the cause of this uncommon marriage. So the story goes like that. How did it happen? Shri Shuka Vacha Ekada Danavendrasya Sarmishtha Nama Kanyaka Sarvihasastra Sanyukta Sakhi Sahasra Sanyukta Guru Putra Cha Bhamini Devananya Purodhyane Pushpita Druma Sankule Vyacharat Kalagitali Nalini Vyacharat Kalagitalin Nalini Pulinel Abala. Sri Shukavacha, Shukadev Goswami said, Ekada, once upon a time, Danava Indriyasya of Rishaparva, Sarmishtha, Nama, by name, Kanyaka, a daughter, Sakhi Sahasra Samyukta, accompanied by thousands of friends, Guru Putra, with the daughter of Guru Shukracharya, Cha, also, Bhamini, very easily irritated, Devayanya, with Devyani, Pura Udyane, within the palace gardens, Pushpita,
full of flowers, druma, very nice trees. Sankule, congested. Vyacharat, was walking. Kalagita, with very sweet sounds. Ali, bumblebees. Nalini, with lotuses. Uline, in such a garden. Abala, innocent. Translation. Sukadeva Goswami said one day Vrishaparva's daughter Sarmishtha, who was innocent but angry by nature, was walking with Devyani, the daughter of Sukracharya, and with thousands of friends in a palace garden. The garden was full of lotuses, trees of flowers and fruits, and was inhabited by sweetly singing birds and bumblebees. Tajalashama asadya kanya kamalalochanaha tire anyasdukulani vijuhu sanchitamirthaha. When the young lotus-eyed girls came to the bank of a reservoir of water, they wanted to enjoy by bathing. Thus, they left their clothing on the bank and began sporting, throwing water on one another. Viksha vrajantam girisham sahadevya vrishisthitam sahottitriya vansansi paryadyu vriditam striyaha. While sporting in the water, the girls suddenly saw Lord Shiva passing by, seated on the back of the bull with his wife Parvati. Ashamed because they were naked, the girls quickly got out of the water and covered themselves with their garments. Sarmishtha janati vaso guru putra samanvyata Swiyam matva kupita devayanim abravit. Sarmishtha unknowingly put Devyani's dress on her own body. Thus angered Devyani, who then spoke as follows. Aho niriksham tamsya dasya karma hya sampratam asmatvarya drutavati suniva haridvare. Oh, just see the activities the servant maid Sarmishthas. Disregarding all the etiquette, she has put on my dress, just like a dog snatching clarified butter meant for use in a sacrifice. Yairidam tapasa srustam mukham punsa parasyaye dharyate yaireti jyoti shiva pantha pradarshitaha yan vadanyut utpattistante lokanathaha sureshvaraha bhagavan api vishvatma pavanah sriniketanah vayam tatrapi brugavaha shishyo asthana pitasuraha asmatvarya drutavati shudro veda mivasati. Kitna bhakti hai dekho. We amongst the qualified Brahmanas who are accepted as the face of the Supreme Personality of Godhead, the Brahmanas have created the entire universe by their austerity, and they always keep the absolute truth within the core of their heart. They have distracted the path of good fortune, path of Vedic civilization, and because they are the only worshipable object within this world,
they are offered prayers, worshipped by even the great demigods, the directors of the various planets, and even by the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, and the Supreme Purifier, the husband of Goddess of Fortune. And we are even more respectable because we are the dynasty of Bhrigu. Yet, although this woman's father, being amongst the demons, is our disciple, she has put on my dress, exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. क्या गाली बकी है? शर्मिष्ठा बकवास करती नहीं, शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए तो देवयानी गुस्से में आ गई। देखो ब्राह्मण की क्या औकात है, वो अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। भगवान भी हमारे मुख से खाते हैं, स्वयं नहीं खाते, इसलिए ब्रह्म भोजन कराना पड़ता है। जब भगवान को देना ब्राह्मण को दो, लेकिन ये कहीं का नियम नहीं। पर लेकिन अहंकार इतना सात्विक होने के बावजूद पिछड़ जाता है। तो एकम क्षिपंती शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम अभाषत रुषा स्वस्व सत्पुरिंगव दर्शिता दृष्टच्छदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब देवयानी के इतने घातक शब्द शर्मिष्ठा ने सुने तो वो भी बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि राजपुत्री थी, चाहे वो उसके पिता दानव थे तो क्या हुआ, शुक्राचार्य भी तो दानव के ही तो गुरु है ना। तो वो इतना भारी श्वास लेकर जैसे सांप फुदकारता है ना, उसी तरह उसने अपने नीचे होठ को दांतों से काटना शुरू किया, यानी कि दबा के बोलने लगी, तू समझती है। तो शी स्पोक, उसने शुक्राचार्य की बेटी को क्या कहा, देखो ये लड़ाई झगड़ा है, एक को गाली बके दूसरी गाली देता है। आत्मवृत्तम विज्ञाय कथसे बहु भिक्षु की किम न प्रतिष्ठते अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा। वो क्या कह रही है? तो भिखारन, और देवयानी को भिखारन कहती है। तो भिखारन, तुझे तेरा तो उसको पता नहीं कि तेरी क्या स्थिति है, ऐसी बकवास क्यों करती है? तो बेकार की बात है। आप लोग क्या हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े नहीं होते? भिखारन। ये तो कौवे जैसा तुम्हारा हाल है कि कौवा भी खाने के लिए घर की छत पर बैठा रहता है कि हमें कब दाना देगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे कौवे को भी अपनी स्वतंत्र जिंदगी नहीं है, दूसरों के आधार पर जीना पड़ता है खाने पीने के लिए। तो जब तक गृहस्थी लोग अपना कचरे कूड़ेदान में नहीं डालते तब तक कौवा भी नहीं आ सकता। देखो ये गाली का कैसा दूसरा भाव है। इसीलिए ब्राह्मण और उसका जो शिष्य होता है वो ऐसी हालत में होते जब तक
वो जिस घर में भिक्षाटन करने जाते हैं वो देता नहीं, तब तक कौवे की तरह राह देखनी पड़ती है उनको। हाँ? तो जब शर्मिष्ठा ने इतने कठोर वचन देवयानी को सुना दिए, तो तो देवयानी को उसने कौवे की तरह बताया कि तुम लोग तो कौवे जैसे हैं, हमारे उच्छिष्ट को खाने वाले हैं, हमारा बचा हुआ। हाँ? तो कहते हैं कि स्त्रियों का ऐसा भाव रहता है कि वो लोग ज्यादा ऐसे कठोर वचनों से ही लड़ती रहती हैं। सही, तू ऐसी है, तू ऐसी है, क्या क्या। हाँ? छोटी सी बाबत में लड़ने लग जाती है। तो हम ये जो उदाहरण है उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि ये सत्ययुग में भी ऐसा होता है। ये कलयुग की ही बात नहीं, सत्ययुग में भी ऐसा होता है। तो एवं विदैहि सुपुरुषे क्षिप्त्वाचार्य सुतिम सतीम शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे वासश्च मन्युना। तो शर्मिष्ठा ने ऐसा कठोर वचन सुनाकर देवयानी को सुनाया और उसने गुस्से में आकर देवयानी को धक्का मारकर कुएं में फेंक दिया। धक्का मारकर, क्योंकि क्षत्रिय औरत है तो ताकत होगी, ब्राह्मण की लड़की ताकत नहीं है, जबान में ही ताकत होती है, लेकिन उसे क्षत्रियों की ताकत ज्यादा होती है, जबान में भी। यानी कि ये ऐसा वाचा का दुरुपयोग कर, ये दशा। तो उसने कुएं में उसको फेंक दिया। कुएं में देवयानी गिर गई और शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। तो उस दरमियान ययाति राजा शिकार के लिए उसी दिशा में जा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं जरा पानी पीऊँ, यहाँ कुआं है। तो उसने कुएं में तो देवयानी को देखा। तो दत्वास स्वमुत्तरम वास राजा विदास से गृहीत्वा पाणिना पाणी जोहार दया पर। देवयानी को बिना कपड़े कुएं में देखकर ययाति महाराज उसने अपना उत्तरीय वस्त्र दिया और लटका के कुएं में डाला और उस पर दया लाकर उसने उसका हाथ पकड़ के खींचा, बाहर निकाली। तो तम वीर महोशने सी प्रेम निर्भया गिरा राजस्त्वं गृहीतो में पाणी परपूरंजय हस्तग्राहो परो मां वृद्ध गृहीत्वा यास्त्वया ही में ईश कृतो वीर संबंधो नौ न पुरुष। देवयानी काफी गदगदित हुई कि राजा इतनी कृपा कर रहे हैं। कि उसने बोला कि हे नरपुंगव, यानी कि राजा में श्रेष्ठ, हे सारे दिशाओं को जीतने वाले, तुम्हारे शत्रुओं को भी जीतने वाले, जब तूने मेरा हाथ पकड़ा, यानी कि तूने
मुझे शादी कर ली है। हाथ पकड़ना यानी शादी कर, शादी में ही हाथ पकड़ते हैं। तो मुझे दूसरे कोई छू ना पाए, ऐसे ऐसे अभी उपाय करो। और हमारे दोनों के पति पत्नी के रूप में ये इस तरह भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति दखलगिरी नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवयानी को कुएं में से बाहर निकाल के समय ययाति ने सोचा होगा तो ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, जवान है, तो ही तो उसने पूछा भी हो सकता है कि तू कौन सी जाति की है। तो देवयानी ने उसे समझाया भी होगा कि तूने तो मेरा हाथ पकड़ लिया है, इसे अभी जाति पूछने की क्या बात है। तो uniting the hands of bride and groom is a system perpetually existing in all society. तो सब प्रकार के धर्मों में भी हस्तमिलाप कराते हैं। इसलिए जब ययाति ने देवयानी का हाथ स्वीकारा तो उसका मतलब ये दोनों पति पत्नी बन गए। और देवयानी ने भी ययाति के काफी गुण से प्रभावित हो गई और उसे वो विनती करनी कि उसका वो अपना मन को बदलना दे कि आ बला गले लगा इसकी बात हो गई। तो दूसरी कोई भी स्त्री के साथ वो शादी नहीं कर सकता। एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो उसको निभाना पड़ता है। यदिदम कुपायाम अंगायाः भवतो दर्शन मम न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बाह्यस्पर्शपत्य शापाद यमशपम पुरा। क्योंकि मैं कुएं में गिरी हूं, मैं तुम्हें मिली हूं, ये कोई विचित्र प्रसंग है। फिर भी मैंने कच जो बृहस्पति का बेटा था उसको मैंने शाप दिया था और उसने मुझे काउंटर कर्स दिया। तो भी कोई ब्राह्मण के साथ शादी नहीं कर पाएगी। ये पुरानी दावत है। और तो देवयानी बताती है इसलिए मैं किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं बन सकती। प्रभुपाद जी बताते हैं कच बृहस्पति का बेटा था। बृहस्पति देवताओं के गुरु और देवयानी और बृहस्पति में थोड़ा कुछ अनबनाव बन गया वहां भी, क्योंकि वो शुक्राचार्य की बेटी है। शुक्राचार्य दानवों के
ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, जबकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो कच शुक्राचार्य के पास शिक्षा उसने ग्रहण की थी और उसने व्यक्ति जो कम होते मरता है तो उसको वो जिंदा बना देने की कला शुक्राचार्य के पास सीखी थी। मृत संजीवनी की ये कला कहलाती है। और जब लड़ाई होती है सब मर जाते हैं उनको पुनः जीवित करने के लिए। तो जब लड़ाई होती है तो सैनिकों काफी मरते हैं। तो यदि कोई भी सैनिक का शरीर बचा है तो वो तुरंत उसको ये मृत संजीवनी की कला से वो जीवित कर सकता था। तो ये शुक्राचार्य जानते थे और बहुत सारे भी जानते थे। और कच बृहस्पति का बेटा होता है, शुक्राचार्य का स्टूडेंट बन गया, शिष्य बन गया। और देवयानी ने सोचा कि कच उसका पति बने, क्योंकि वो भी तो ब्राह्मण है, हम भी तो ब्राह्मण हैं। लेकिन एक देवता के ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, दूसरे दानव के गुरु हैं, मेल तो नहीं खाएगा। तो जब कच ने शुक्राचार्य को गुरु माना तो आदर सत्कार से देवयानी को भी उसकी ऊंची औकात है करके उसको मान सम्मान के रूप में बताने लगा। हाँ, तो कि भाई आप तो बड़े ऊंचे हो, मेरे गुरु की बेटी हो, मैं आपके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। तो देवयानी को हटा दिया। तो देवयानी गुस्से में आ गई। वहां उसके साथ भी गुस्से में क्यों आते हैं? ये दानव क्रोधित होते हैं। जब रजोगुण को संतोष नहीं मिलता है तो क्रोध में, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, तुरंत खड़ा हो जाएगा क्रोध जब कामना की तृप्ति नहीं होती। तो देवयानी ने कच को श्राप दे दिया कि मृत्यु संजीवनी की तूने कला मेरे पिता से सीख ली है, वो निस्तर हो जाए। ऐसा श्राप दिया। तो कच ने भी श्राप दिया कि तुझे कोई ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं। तो ब्राह्मण की बेटी है, इतना अहंकार रखती है, जा तुझे कोई ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं। तो ये कितना पावरफुल है। एक दूसरे को गाली देना महंगा पड़ जाता है। बेहतर है झगड़ा करे ही नहीं। कलयुग में तो किसी के पास पावर नहीं होता ना, गाली में भी पावर नहीं होता है, लेकिन आदत जाती नहीं, तामसिक प्रवृत्ति जाती नहीं। तो इसी तरह देवयानी और कच अनबनी हो गई। और तो देवयानी ने सीता के सही, मुझे तो ब्राह्मण के साथ शादी करने की तो अपेक्षा ही नहीं थी, इसलिए ये भगवान ने ऐसा बना दिया मौका कि आप राजा हैं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, फिर भी आपने मुझे
दया से हाथ पकड़ा है तो अभी निभाओ। तो देवयानी ययाति को चाहने लगी, जबकि वो क्षत्रिय था। तो उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का की याचना की थी। तो ये जो है ब्राह्मण की बेटी क्षत्रिय में यदि जाए तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रति यानी उल्टा, लोम ये चमड़ी का रिश्ता है। अनुलोम यानी कि अनुकूल है। तो इसी तरह अलग अलग चरित्र वाले जब इकट्ठे होते हैं तो वर्ण संकर पैदा होने लगती है प्रजा। तो एक ऊंचे किस्म के लोग की बेटी यदि नीचे किस्म की लोग में घर में जाती है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। लेकिन वो ययाति को ये भगवान की कृपा से हुआ। ये ऊपर वाले का न्याय है। इसलिए सब ब्राह्मण का शाप तो कभी अपर नहीं होता ही है। उस समय में ब्राह्मण का शाप, कलयुग की शुरुआत में भी तो वो ब्राह्मण के बेटे ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, छोटी सी बाबत में। तो ये तो कलयुग की शुरुआत होगी। तो कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणो अर्थो अधूमोऽपि। ये श्रीमद् भागवत में हमें धर्म क्या है उसकी स्पष्टता है, सूर्य प्रकाश की तरह। नहीं तो और कहीं धर्म के बारे में जानकारी ठीक ढंग से कोई भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, यही तीन पुस्तक जो धर्म ग्रंथ कहलाता है, उससे हमें पूर्ण ढंग से अवगत रहना चाहिए। नहीं तो वेद तो असंख्य बताए जाते, वेद उपवेद 108 तो उपनिषद से और पुराण 18 पुराण। तो 18वें में श्रीमद् भागवतम पुराण की महत्ता, क्योंकि कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग में हमारी जो दृष्टि है ये ऊंच नीच कैसे किसके साथ ब्याह होता है तो ही परिवार आगे बढ़ता है। अभी तो वर्ण संकर प्रजा सभी, कोई देखता ही नहीं कौन क्या है क्या नहीं। चमड़ी का आकर्षण होता है। तो ऐसा नहीं कि क्या हम लोग ये पुरानी जनवानी, अभी नया जमाना आ गया है, लेकिन वर्ण संकर है सब, वर्ण संकर। 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था भगवान ने सब जगह बनाई थी। लेकिन अपने देश में, अपने संस्कृत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में जाना है। प्रभुपाद जी के प्रदेश में भी तो है। ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास, क्षत्रिय मीन्स वॉरियर क्लास, वैश्य मीन्स मर्केंटाइल क्लास, एंड शूद्र मीन्स लेबरर क्लास। आप देखो लेबरर कितने हैं, लेबरर कितने हैं।
शूद्र में से आगे बढ़ सकते हैं यदि योग्य शैक्षिक तालीम मिले तो। आर्टिफिशियली तो कोई नहीं बन सकता। सारे लेबररों को ही नौकरी देनी होती है क्या? कितने बेकार पड़े हैं, पढ़े लिखे भी बेकार हैं। कभी हो ही नहीं सकता कि सबको नौकरी की गारंटी मिले, चाहे आप रिजर्वेशन रखो या कुछ भी करो। अभी तो ये 4 कास्ट ही नहीं रही, उपकास्ट भी बहुत बना दी है लोगों ने। एक 4 का ठिकाना नहीं कलयुग में, तो उपकास्ट का बैकवर्ड क्लास, ये रिजर्व, अमानत, ये क्या बात है? जो यादव लोग हैं जो बिहार में पड़े हैं, ये पता नहीं अपना नाम यादव कैसे रख सकते हैं। भगवान ने तो यादवास्थली में सबको मार दिया था, हम लोग थोड़े बचे थे, भाग के आ गए। लेकिन ये बिहारी, कोई ऊंचा बिहारी होता है, कोई नीचा बिहारी होता है, और दोनों में झगड़ा होता है। इस्कॉन में भी बिहारी बिहारी के भी झगड़ा, हमें फंसाते थे। हमने कहा कि हम नहीं फंसेंगे। ये मामला झगड़े का वो सारे दुनिया में, और कलयुग में तो होगा ही हो गए। तो कहने का मतलब है कि सब अपने आप को यादव बताएंगे, और बिहार में अनरेस्ट, टोटली अनरेस्ट, कितने सालों से उसका विकास नहीं, जबकि पॉलिटिक्स में बहुत सारे बिहारी ही होते हैं, लेकिन अपना अपना खिस्सा भरने के लिए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अरे मुलायम था ही नहीं, मुलायम यानी कि सॉफ्ट हार्टेड। उसने तो राम भक्तों पर गोली चलवाई, कितने को मार दिया था। वो पहले जो बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था ना, ये चीफ मिनिस्टर था तो गोली चलाई। कहने का मतलब है ये कलयुग है। कलयुग में नाथ पात का कोई महत्व नहीं रहा है, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं रहे। ब्राह्मण ब्राह्मण क्वालिटी का नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय क्वालिटी के भाई नहीं रहा। बाकी तो रहे सारे हैं। कोई व्यापारी है, तो व्यापार करके अपने आप को राजा समझता है। सारे राजा भी चौपट हो गए। इंडिया में कितने राजा राज्य थे, सबको मिला दिए। कलयुग का लक्षण कि कोई क्वालिफाइड नहीं। तो कलौ शूद्र संभवान, कलयुग में शूद्र ही पैदा होंगे। पर लेकिन प्रभुपाद जी ने ये चार वर्णों से हमें ऊपर उठाया। हम अपने जात पात का कोई गर्व नहीं रख सकते क्या? कलयुग में तो सब शूद्र के समान। हाँ, लेकिन कर्मणा जायते द्विज, अपने कर्मों से कोई ब्राह्मण बन सकता है। जनरली ब्राह्मण को टीचिंग प्रोफेशन ही होती है, पर लेकिन यदि कलयुग का सामान पढ़ा रहा है तो उसमें ब्राह्मणत्व कितना होगा? जो भी है, टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट। वो ब्राह्मण बोले प्रभुपाद या एवरीबडी शुड बिकम ए टीचर। जारे देखा तारे कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होना तारे यही देश। Don't accept any other job when you graduate. Become a Brahman, Brahmanical job. Teach Krishna consciousness. तुलसी को। दो रोटी कमाई के लिए इतना सारा जिंदगी पर बोझा उठाना ठीक नहीं है।
कल्टिवेट ब्राह्मणिकल क्वालिटी डायरेक्टली। जन्म से तो शूद्र हैं, लेकिन कर्म ऐसे बनावे कि ब्राह्मण बने। देखो ये झगड़ा सत्ययुग के समय में था, हाई क्वालिटी झगड़ा। झगड़ा भी उसकी क्वालिटी होती है। लड़ाई झगड़ा करना घर में, सब घर में बर्तन तो खड़खड़ते ही हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी के बर्तन खड़खड़ते हैं देखना, क्या बकवास करते हैं। शुक्राचार्य और देवयानी जिस तरह ब्राह्मणिकल क्वालिटी वाले थे, तो उसी तरह वो सिखाते भी होंगे। तभी तो देवता का बेटा आकाच शुक्राचार्य दानव के गुरु के पास सीखा। तो संस्कार देखो, देवयानी तो उस पर फिदा हो गई और अपने ब्राह्मणत्व का, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, तो दोनों ब्राह्मण में टकराव हुई। तो ये कच्छ का जो उदाहरण है बहुत आदर्श बनता है। गुरु को कोई सांसारिक संबंध में नहीं लाना चाहिए। गुरु को सांसारिक संबंध में नहीं लाना चाहिए। तो शुक्राचार्य की बेटी वो समझती नहीं थी। वो तो समझे ये भी ब्राह्मण है, भी ब्राह्मण है, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग है। गुण मैच नहीं करते, चाहे दोनों ब्राह्मण के क्यों ना हो। तभी तो कच्छ ने कहा कि तू तो मेरे पूजनीय गुरु की बेटी हो, तो तू भी ऊंचे कुल वाली हो, मैं तेरी पूजा करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। बस तो वो जैसे जैसे सुपर्णखा रामचंद्र से विवाह करना चाहते, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूं, जान लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण मैं अति सुंदर हूं, ये हूं, चलो हम शादी कर लें। तो लक्ष्मण ने नाक काट लिया उसका। सही ना? तो कहने का मतलब है ये वो भी रावण ब्राह्मण था, लेकिन भगवान का दुश्मन निकला। ब्रह्म को जानता है पर ब्रह्म को नहीं जानता है। तो ये सारे ईर्षालु होते हैं, वही ये धरती पर आकर पटकते हैं, है ना? हम बारंबार ये कोट करते, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हम लोग सभी भगवान से ईर्षा करके आए हैं। द्वेष यानी ईर्षा। इसलिए हमारी इच्छा अलग होती है, भगवान की इच्छा अलग होती है। बाद में कहते हैं ओ भगवान ईश्वरीय इच्छा बलियसी, भगवान की इच्छा ही ताकतवर है, क्योंकि तुम्हारी चलती नहीं इसलिए। पहले से क्यों अकलमंदी रखकर स्वीकार लो कि हमारी चलने वाली नहीं है, तो हम इस दिशा में व्यर्थ जिंदगी न बिताएं, है ना? जो भी है, इस्कॉन में भी समस्या है तो ईर्षा के कारण। जो जिसमें ईर्षा है वो भगवान के भक्ति के बारे में कुछ नहीं जान सकता। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अनसूयवे, अर्जुन तू मेरा ईर्षालु नहीं है, इसलिए मैं तुझे अति गुह्यतमम ज्ञान मेरी भक्ति के बारे में वो मैं तुझे कहता हूं। तो ये क्वालिफिकेशन भक्तों का है। फिर भी भक्तों के बीच में ईर्षा करते, झगड़ा करते हैं।
हम ऊंचे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम आपको समझाएंगे, हमारी निगाही में रहना, बाहर नहीं जा सकते। The very first disqualification is we are envious. Therefore, we do not get the secret of it. एनवी कैसे मिटाओ, उसका उपाय करो, तो भगवान आप सामने आ जाएंगे। इतनी छोटी सी एक ईर्ष्या भी नहीं जा सकती। इसी के कारण तो हम सभी बिना अपवाद गिरे हैं। भगवान का स्थान जो है चिदानमय आकाश से गिरे हैं। बहुत सारे स्तर हैं। गोलोक वृंदावन से कोई गिरता ही नहीं। वैकुंठ से गिर सकता है, ब्रह्मज्योति से गिर सकता है। ईर्ष्या के कारण, अलग इच्छा के कारण। तो उद्धार कौन करेगा? भगवान का कहा इस जन्म में मानने के लिए हमें सारी अपनी बुद्धि को लगाकर छानबीन करने का मौका मिलता है, तब होता है। बेवकूफ लोग बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं। कितना सादा, एक इच्छा और द्वेष एक दो ही चीज है जो सारे भौतिक जगत को बनाता है। नहीं तो यही जगत आध्यात्मिक बन जाता है जहां ईर्ष्या और द्वेष नहीं। गलती करने की आदि काल से गिरे हुए को आदत बनी रही है। आदत बनी रही है। गुरु पक्षपाती नहीं होता, सबको अवेलेबल होता है। किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सोच समझ करके हमें आगे बढ़ना है। ईर्ष्या को हटाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। छोटी सी भी ईर्ष्या भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण पैदा करने, सत्वगुण में अपने आप अपनी स्थिति बनाए में शांति महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर उठना होता है जो परसत्व है और विशुद्ध सत्व कृष्ण, इनके पास पहुंचने का तो ये तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेत एतिर अनाविद्यम। अनाविद्यम मीन्स किसी भी प्रकार के स्थितम सत्वे प्रसिद्ध। ये जब रजोगुण और तमोगुण द्वारा जो ये सब पैदा हैं वो हटकर सत्वगुण में स्थिर रह सकते हैं। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है। प्रसन्न मन से भक्ति करनी है। ऐसे नहीं कि मैं तेरी टांग खींचूंगा ना। होता है ना। तामसिक उपाय, काला जादू इस्कॉन में घुस गया है अभी तो। पीपल आर बिकमिंग ऑथोरिटी ऑन इट। जादू टोना करना इस्कॉन में घुस गया। तो आगे जाकर क्या इस्कॉन का हाल होगा? फिस्कॉन बन जाएगा।
हाँ? एक बाहर का दूषण जब घर में घुसता है तो खदान मैदान हो जाएगा। भगवान की भक्ति ईर्ष्यालु को प्राप्त नहीं होती, भगवान विड्रॉ कर लेते हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो। भौतिक दुनिया में देवयानी बनना भी बेकार है और शर्मिष्ठा बनना भी बेकार है। हाँ? किसी को कोई प्रश्न है? हमने क्या कहा? किसी को गाली दो तो असर नहीं करती कलयुग में। कलयुग में गाली असर नहीं करती, किसकी गाली पावरफुल होती है? लेकिन वैष्णव अपराध असर करता है कलयुग में। गाली असर नहीं करती, पर वैष्णव अपराध क्या असर करता है कलयुग में? वैष्णव अपराध तो पहला ही करता है। वैष्णव अपराध यानी कोई अपने आप से ऊंचा माने। भगवान नाम का जो सर्वप्रथम अपराध है ये लागू पड़ता है, जब भक्ति रोक देता है। तो blasphemy devotee who has dedicated his life for propagating the holy name of the Lord, ये ईर्ष्या का कारण है। एक भक्त दूसरे भक्त को भी इसी तरह फंसाता है, झूठे आक्षेप लगाता है, कोई पुरवार नहीं कर सकता। हाँ? तो भक्ति खदान मैदान हो जाएगी। यही तो सिखाते हैं, फिर भी दादागिरी से करते हैं। हाँ? उनको ऐसा कोई साथ मिलता है। क्रुक्स, चाहे कौन सा बड़ा हुद्दा भी उसने धारण क्यों न किया हो, बट दे फॉल डाउन। पहला अपराध चढ़ता है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स, कि कभी ऐसा ना हो किसी का दिल दुभाना, तुरंत माफी मांग लो। आदत है तो क्या हुआ, ये आदत भी पॉजिटिव बना के माफी मांग लेना फटाफट। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन। भक्ति आगे बढ़ाने के लिए तो यही उपाय है। सतयुग में ये रूल था कि ब्राह्मण शूद्र के साथ शादी नहीं कर सकता था या वैश्य के साथ लड़की शादी नहीं कर सकती। कलयुग में भी ये रूल मानना चाहिए, क्योंकि अभी तो सब शूद्र आने लगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू हैव एन अम्ब्रेला यूज इट। अम्ब्रेला में भी थोड़ा गीलापन तो रहता ही है, कम रहेगा, इतना ही है ना। बच तो पाओगे ना, तो फिर इफ यू हैव अम्ब्रेला यूज इट। इफ अदर्स डू नॉट हैव अम्ब्रेला, they might purchase, then use it like that. तो अभी तो सभी लोग कलयुग के प्रभाव में है, तो ब्राह्मण भी शराब पीते हैं वहां पे दिल्ली जैसे हमारे शहरों में। तो कैसे ढूंढेंगे किसी की लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए अच्छे? सब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कहलाने वाले हैं। कलयुग में ब्राह्मण कोई होता ही नहीं, शूद्र है। हाँ? केरला में नाबुदरी बहुत पड़े हैं। हाँ? सारे नाबुदरी थे, मुसलमान बन गए और 30% हो गए, क्रिश्चियन बन गए, वो भी
35% बन गए, बाकी रहा तो वो लोग दया खाते हैं, अरे इतने तो हिंदू बचाओ। लेकिन ये सारे शूद्र क्वालिटी के, और शराब ज्यादा मुसलमान तो पीते ही नहीं, क्रिश्चियन पीते हैं, तो ज्यादा कौन पीता है? देखिए हिंदू। अब कौन से हिंदू रहे? मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, वो तो कहीं हिंदू कहलाते हैं। तो ये कलयुग है, वाहरे कलयुग तेरी बलिहारी, दुख लगे और हंसी। दोनों साथ साथ में, एक तरफ दुख भी होता है, दूसरी तरफ हंसते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के, चोर को छोड़े साधु को बांधे, अब पथिक को लगाए फांसी। अमेरिका में ये पुलिस यूनिट, इसी तरह इंडिया में भी पुलिस यूनिट, सब एक सरीखे हैं। किसी भी आदमी को पकड़ के चार्ज लगा सकते हैं। यू गिव मी ए मैन एंड आई विल गिव यू चार्ज। उसने कोई गुनाह किया न किया नहीं, हम चार्ज दे देंगे, बाद में पुरवार करते रहो 20 साल तक। ऐसी सिस्टम है, तो जीवन तो खैरान हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए तो हरिनाम करना बहुत सुरक्षित है। डोंट कमिट एनी क्राइम। हमारे इस्कॉन में तो क्रिमिनल को बचाने वाले हैं, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये बला पड़ी है लोटुका में भी, झूठ क्या है? सब जगह पड़ी है, सुबह में भी पड़ी है। तो क्या हुआ? इसको ऑफ कर दे बाबा।